جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج شام اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 بار اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ روزہ۔ جتنے خدا کے کلام کے طالب علم یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی لغت کے مطابق اس کا مطلب ہے روک لگانا۔ اس کا مطلب ہے خود کو روکنا۔ اور جب ہم اسی لفظ کو اردو لغت میں اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ہماری اردو ڈکشنری کے مطابق روزے کا مطلب ہے خود ضبطی۔ روزے کا مطلب ہے خود کو کنٹرول میں لانا، خود پر روک لگانا۔ اب یاد رہے کہ یہ دن مجھ سے اور آپ سے اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم زندگی کے مختلف ایریاز میں اترتے ہوئے جہاں جہاں محسوس کریں کہ ہم صحیح نہیں ہیں وہاں روک لگانے کی کوشش کریں، وہاں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو پھر ان چیزوں کو اپنے رب خداوند کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو نہ صرف کنٹرول کرنا جانتا ہے بلکہ جب ہم اپنے کل کو، اپنے پرانے کو اپنے خداوند کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیزوں کو نیا بنا دینے کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کے لوگوں نے جب جب ضرورت محسوس کی وہ دعا اور روزے کی پریکٹس کرتے رہے، اور خدا کے کلام کے جتنے طالب علم یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بائبل کی دنیا میں ایک روزے کا بیان ہمیں ملتا ہے، 3 روزے کا بیان ہمیں ملتا ہے، ایک ویک، ایک ہفتے کے روزے کا بیان ہمیں ملتا ہے، اور پھر 40 دن کے روزے کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ اور میرے یسوع نے بڑی خوبصورت بات متی کی انجیل کے 6 باب میں کہا اور جب تم روزہ رکھو۔ اردو لغت کے مطابق یہاں لفظ جب کا مطلب ہے جب تم ضرورت محسوس کرو، نہ صرف ان دنوں میں بلکہ سال کے 365 دنوں میں جب جب تم ضرورت محسوس کرو تم دعا اور روزے کی حالت کو اختیار کر سکتے ہو، جب تم ضرورت محسوس کرو۔ جب میں اور آپ سمجھنے لگیں کہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں جسمانی طور پر، کچھ ایسا ہے جو ہمیں روحانی طور پر نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں خود ضبطی کی ضرورت ہے۔ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ان دنوں میں جو بیٹے اور بیٹیاں روزے کی حالت میں ہوں گے، وہ جو لین ہونا چاہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ آج کے دن میں آپ اپنا ویٹ کرنے کے بعد اس کی رپورٹ مجھے ٹیکسٹ کریں گے، واٹس اپ کریں گے، اور پھر ان 40 دنوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا بیٹا یا بیٹی ہے جس نے اپنے آپ کو زیادہ لین کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے خاندان کی طرف سے انہیں کوئی چھوٹا سا گفٹ دیں گے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کلیسیا میں سے کچھ لوگ ان 40 دنوں میں دعا اور روزے کی پریکٹس کریں، پچھلے سال
कोई 17 लोग थे जिन्होंने 40 पूरे के पूरे रोजे रखे। मेरी दुआ है कि इस साल ये तादाद बढ़े। अगर ये तादाद बढ़ती है तो फिर हम उन तमाम लोगों को कुर्रे के ज़रिए यहाँ रखेंगे और किसी एक नाम को उठाएंगे। और मैंने कहा था कि हम सनराइज सर्विस में अपने ख़ानदान की तरफ से उसे गिफ्ट भी देंगे। तो ये एक छोटी सी तहरीक देने वाली बात है। और मैं असल में सिखाना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लीन होने वाली बात नहीं है, ये रूह के तौर पर तगड़े होने वाली बात भी है। आप जिस्म के तौर पर कमज़ोर हों, लेकिन ये दिन हमसे ये तकाजा करते हैं कि हम अंदर से यानी रूह के तौर पर मजबूत और फिर मजबूत और फिर मजबूत होते चले जाएं। एक बात नोट कर लें भाई, मेडिकल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेडिकल के लोग ये जानते हैं कि अगर आप जिस्मानी तौर पर मोटे ताज़े होते हैं, आप अंदर से कमज़ोर होते हैं। लेकिन जब आप बदनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, आप अंदर से यानी रूह के तौर पर ज़्यादा चाको चौबंद और तगड़े होते हैं। और ये दिन हमसे तकाजा करते हैं कि हम अंदर से अपने आप को मजबूत करें, अंदर से रूह के तौर पर अपने आप को मजबूत करें। और मैंने पिछले कई सालों में ये सिखाया कि रोज़ा असल में रूह की एक्सरसाइज का नाम है। जब 40 दिन हम इस एक्सरसाइज के अमल में से गुजरते हैं तो फिर हम रूह के तौर पर तगड़े होते होते और होते चले जाते हैं। चूंकि इस बार माह रमज़ान जो है बिल्कुल हमारे साथ ही आया है, मैं अपने इन प्यारे भाइयों को भी शामिल करके ये कहूँगा और आपसे भी ये कहूँगा कि रोज़ा जो है वो महज खुराक से अपने आप को रोकने का नाम नहीं। रोज़ा जो है वो महज खुराक से अपने आप को रोकने का नाम नहीं, ये उन तमाम कामों से अपने आप को रोकने का नाम है जो खुदा को नापसंदीदा है। ये उन तमाम कामों से अपने आप को रोकने का नाम है जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता और जिनके बारे में आप समझते हैं कि वो मुझे बदन के तौर पर और रूह के तौर पर नुकसान पहुंचा रहे। चलें 5 बातें आज इसी हवाले से इस सीजन के आगाज में कहूँगा। पहली बात, रोज़ा कुर्बानी का एक अमल है। कुर्बानी क्या है? वो जो खुदा को पसंद नहीं और मुझे पसंद है उसे छोड़ना है। और ये छोड़ना जो है ये कभी भी आसान नहीं होता। यही तो कुर्बानी है। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आपने अपने साथ लगाई हुई हैं और आप उनसे जुदा होना नहीं चाहते, उनको छोड़ना नहीं चाहते, वो ऐसी चिपक गई हैं कि आपकी जान नहीं छोड़ती। आप इस तरह से उलझे हुए हैं कि आप सुलझाव में नहीं आ पाते। उसी एरिया में सुधार का नाम तो रोज़ा है और यही तो वो कुर्बानी है जो बाइबल का खुदा मुझसे और फिर आपसे चाहता है। दूसरी बात, रोज़ा हमें हमारे रब खुदावंद के करीब लाता है। गोया कि ये खुदा की कुर्बत हासिल करने के हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त है। और जब हम दुआ और रोज़े की हालत में होते हैं, दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं, तो फिर हम अपने रब खुदावंद के क्लोज और फिर क्लोज और फिर क्लोज होते और होते चले जाते हैं। और इस अजीम किताब में बाइबल का खुदा कहता है कि तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। तुम मेरे क्लोज होने की कोशिश तो करो, मेरे क्लोज रिलेशनशिप में तो आओ और फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। सादा जुबान में रोज़ा क्या है? खुदा के साथ क्लोज किस्म के रिलेशंस
बनाने का अमल है। दुआ भी है, लेकिन रोज़ा उससे बढ़कर है। रोज़ा हमें खुदावन के साथ क्लोज किस्म के रिलेशंस में ले आता है, ताल्लुक में ले आता है। तीसरी बात, रोज़ा जो है वो मेरी दानिश में चीज़ों को रीस्केड्यूल करने का नाम है। 365 दिनों में आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब दुनियावी काम करते हैं, हमें अपने आप को रीस्केड्यूल करना है कि नहीं, इन दिनों में दुआ और रोज़े की प्रैक्टिस करते हुए मैं अपनी रूटीन को बदलूंगा। तो आज के लिए तीसरी बात, रोज़ा क्या है, अपनी रूटीन को बदल लेना। वो काम जो मैं और आप रूटीन वाइज कर रहे हैं, उन कामों पर रोक लगाना और कहना कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चौथा, रोज़ा जो है वो बहुत सी चीज़ों को कट ऑफ करने का नाम है। और अगर प्रैक्टिकल वे में कोई मुझसे पूछे तो इन दिनों में आप अपने स्क्रीन टाइम को कट ऑफ कर सकते हैं। आप अभी अहद करके जा सकते हैं कि आज से 40 दिन तक स्क्रीन बंद, घर का टेलीविजन बंद। 40 दिन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी गाड़ियों में लगा हुआ आपका रेडियो और आपका कैसेट प्लेयर जो है, आपकी सीडी या कुछ भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, क्लोज नहीं चलेगा। हाँ चलेगा तो फिर सिर्फ उस पर खुदा का कलाम चलेगा और उसके गीत चलेंगे, और कुछ नहीं। कट ऑफ। चीजों को अपने से दूर करना। इन दिनों में कोई ड्रामा, कोई फिल्म नहीं देखी जाएगी। होता रहे नुकसान, हमने बड़ा फायदा दे लिया फिल्में बनाने वालों को। अब 40 दिन तक कोई फिल्म नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ये अपनी कमिटमेंट की बात है भाई। आप क्या है जो आप नहीं कर सकते? इंसान क्या नहीं कर सकता अगर वो चाहे? अगर वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता? कोई फिल्म नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नौजवानों कोई गेम नहीं। कट ऑफ। कोई गेम नहीं। इन 40 दिनों में कोई गेम नहीं होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता और बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूं, अगर इन 40 दिनों में आपने ब्रेक लगा ली, आपने रोक लगा ली, खुद जब्ती का मुजाहिरा किया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत कुछ बदल जाएगा। लो, एक गवाही मैं आपको देने लगा हूं और खुदा के ऑल्टर पर खड़े होकर यह गवाही देने लगा हूं। पिछले साल मेरे बेटे आकाश ने अपने बेटे पर इसी तरह की रोक लगाई। हम 3 लोग पिछले 10 दिन में जर्मनी में थे। मैं वो सीन बड़ा हैरान हुआ। क्यों? क्योंकि पासवान होने के नाते मैं 365 दिनों का पादरी हूं। हर रोज किसी घर में जाता हूं और हर रोज मैं ये देखता हूं कि बच्चे एडिक्टेड हैं। ये स्क्रीन से तो हट नहीं सकते। छोटे दूध पीते बच्चे भी स्क्रीन से हट नहीं सकते। मैं सना हाथ खड़े करके कहता हूं, हम 14 दिन वहां रहे। मैंने उस बेटे के हाथ में ना तो टैब देखी ना फोन देखा। और मैंने आकाश से पूछा, मैंने कहा कि ये कैसे हुआ? उसने कहा, डैडी जी ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि रोजे शुरू हुए, हमने कहा कट ऑफ लगाएंगे भाई, ये चीजें बंद करेंगे। हम कुछ नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अपने कानों पर, अपनी आंखों पर और अपने ज़हन पर पाबंदी लगाएंगे। अब उस बच्चे को इतनी आदत पड़ गई है कि आप यकीन माने, मैं खुदा का कलाम उठाकर कहता हूं, 2 बार मैंने चेक करने के हवाले से फोन थमाने की कोशिश की। उसने कहा, दादा हटाओ इसको, ये नहीं चाहिए। क्या है जो आप नहीं कर सकते भाई?
मैंने अपनी खिदमत के दौरान लोगों की सिगरेटें छुड़वा दी हैं। वो जो कभी कभी शौक कर लेते थे, मैंने उनके शौक ख़त्म करवा दिए हैं कि भाई इन दिनों में ज़रा रोक लगा लो। इन दिनों में रोक लग गई तो आप यकीन माने बच जाएंगे। और ऐसा हुआ, बहुत से लोगों ने यहाँ खड़े होकर आकर गवाहियाँ दी कि इन दिनों में ये पीने पिलाने वाला काम हमने छोड़ा, ऐसा छोड़ा, उसके बाद उस तरफ हाथ बढ़ा ही नहीं, कट ऑफ। काश के हम आज यहाँ अहद करके जाएं, नो पार्टीज 40 दिन तक नहीं। थोड़े से अखलाकी बने भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ का कल्चर ऐसा है। आप किसी को ये कह देंगे कि नहीं सॉरी, चूँकि 40 दिन में ना मैंने अपने आप को रोका हुआ है, तो मेरे ख्याल कोई बुरा नहीं मनाएगा। शायद पहली बार जब मैंने आपको ये कहा था 5 साल पहले कि मैं इन दिनों में, चूँकि गोश्त मुझे बहुत पसंद है, मैं किसी तरह का कोई मीट कोई फिश नहीं लेता, और पिछले 3 सालों से तो मैं मीठा भी नहीं लेता, मीठा खा खा सत्यानाश कीता है। तो जब मैं 61 साल का बुढ़ा ये कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आज से सब कुछ मना है। मैंने घर में कह दिया आप कुछ भी बनाएं, आप कुछ भी खाएं, मैं अपने आप को रोक लगाऊं। तो क्या है जो हम नहीं कर सकते? नो पार्टीज, नो गेम्स, नो खेल तमाशे, सिर्फ और सिर्फ दुआ इबादत, दुआ इबादत, दुआ इबादत, दुआ इबादत। और मैं गारंटी देता हूं, आप देखिएगा इन दिनों के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, शानदार किस्म का रिजल्ट। अरे भाई, आप किसी इंसान के लिए प्यारे बच्चों को छोड़ें तो वो आपका दीवाना हो जाता है। मैं 5वीं बात करने लगा हूँ, दुआ और रोज़े में अगर चाहते हैं आपका यस्सु आपका दीवाना हो जाए, तो फिर उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, इन तमाम चीज़ों को नीचे ले जाएं, रोक लगाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो भी आपको यहाँ ले आएगा 40 दिन के बाद। यहाँ 5वीं बात है, रोज़ा खुदावन को अव्वल दर्जा देने का नाम है। नो रिश्तेदारी, नो दोस्ती, नो रिलेशंस। भाई इन दिनों में मैं ज़रा अपने रब खुदावन के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अपने रब खुदावन के साथ ही जुड़ा रहना चाहता हूं। अच्छा, दुनिया की कोई किताब हमें इससे बाज नहीं करती, इसके बारे में कोई नेगेटिव किस्म का कमेंट नहीं देती। देखिए, मैं किसी को ये कहूँ कि जी इन दिनों में मैंने अपने आप को बांधा हुआ है, तो कोई बुरा तो मनाएगा ही नहीं, लेकिन मामला तो बांधने का है ना, अकील, बांधने का। आप कितना बांधते हैं अपने आप को, आप कितना अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। और छठी बात, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए जिंदा रखा है। उसने हमें आज़ादी दी है, और उसने ये कहा है, गलतियों के खत में अपने बंदा के ज़रिए, मुकद्दस पालूस के ज़रिए ये लिखवाया है कि हम दोबारा किसी भी तरह के जुए में ना जुटें। वो ड्रामों का जुआ है, वो फिल्मों का जुआ है, वो गेम का जुआ है, वो मिलने मिलाने का जुआ है, वो पार्टीज का जुआ है। साल पूरा पड़ा है भाई, क्या फर्क पड़ता है? और मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ये कहा था कि अगर इन दिनों में नाजिया की तरह किसी की बर्थडे आ जाती है तो क्या करें भाई, आप पैदा ही इसी महीने में हुए, तो अब आपको तो ये सहना पड़ेगा। सादगी के साथ ही चुप करके बस चुन्ना सा केक ला के घर पे ही काट लेंगे। नो बुलावा, नो पार्टीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ केक। अब आप पैदा ही इस महीने में हुए हैं तो ये तो बाबरकत महीना है भाई, तो इस बरकत को रिसीव करने की कोशिश करें। इसे बुरा ना मनाएं, इसे बुरा ना मनाएं, इस बरकत को रिसीव करें, रिसीव करें। मेरी बेटी जो कनाडा में है, उसका छोटा वाला बेटा 29 फरवरी को पैदा हुआ, 29 फरवरी को पैदा हुआ।
اب टेक्निकली एल्डर साहब उसका बर्थडे कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद। अच्छा, शुरू में ना वो थोड़ा सा बुरा मनाता था, वो बुरा मनाता था कि यार सबके बर्थडे होते हैं, मेरा बर्थडे ही नहीं होता। मैंने फिर उसे जाके समझाया, बेटे 4 साल के बाद जो इकट्ठा होता है ना, उसे बर्थडे नहीं, उसे ग्रैंड बर्थडे कहते हैं। अब वो इस बात को लेकर बैठा हुआ है कि हर 4 साल के बाद जितना बड़ा मेरा बर्थडे होता है, इतना आर्थर का तो होता ही नहीं है। बच्चों को आप जिस तरह से ट्रेन करेंगे, जितना पॉजिटिव उनको रंग देंगे, वो उतने पॉजिटिव होते और होते चले जाएंगे। देखें, एक बात याद रखें, नफ्सियात ये कहती है कि हमारे ये जितने बॉडी पार्ट्स हैं, ये हमारे जहन के ताबे हैं। अगर आपने अपने जहन को अपने ताबे कर लिया तो ये भी तो एक पार्ट ही है ना भाई। अब इसके कहने पर हाथ चलता है, इसके कहने पर पाँव चलता है, तो ये मेरे कहने पर क्यों नहीं चलता? अगर मैं और आप चाहें तो हम अपने इस पार्ट को अपने कहने पर चला सकते हैं और इसे समझा सकते हैं कि नहीं, इन दिनों में ऐसा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये चुप करके शांत होकर बैठ जाएगा, शांत होकर बैठ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं। बाइबल मुकद्दस में आज के हवाले में यशाया नबी ने कहा कि अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। अपने दौर के लोगों से कहा कि अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदावंद आज मुझसे और आपसे ये कह रहा है, आए प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोगों, अब तुम इस तरह रोजा नहीं रखते। आए दुबई की कलीसिया, तुम इस तरह से रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। तो फिर सवाल ये है, हम किस तरह से रखते हैं? यही तो ढूंढना है कि कहां कहां कमी और कमजोरी है कि हमारी आवाज जो है वो आलमे बाला पर सुनी नहीं जाती। एक और बात कहूंगा भाई, ये रोजा डाइटिंग नहीं है भाई। कुछ लोगों ने रोजे को डाइटिंग बनाया हुआ है। नहीं भाई सब इस पर डाइट करन रहे हैं, तो वो सारा साल करया करो ना। इन्होंने दिनों जो थोड़ी डाइट करी दी है, ये डाइटिंग थोड़ी है। रोजा डाइटिंग नहीं है भाई, अपने आप को कमजोर करना नहीं है। रोजा तो अपने आप को अंदर से तगड़े करने का नाम है भाई, तगड़े करने का। ये डाइटिंग थोड़ी है। लेकिन कई बार हम इसे जस्ट डाइटिंग के तौर पर ही लेते हैं। कई बार कुछ लोग इसे नुमाइश के तौर पर लेते हैं, दिखावे के तौर पर लेते हैं। बड़ा लगा है, यकीन मनो अज तो इन्ना को लगा जे के हाथ में ते परां जाके लगे ना किते। ये साडे ही उत्ते आके क्यों लगता है? क्या हो गया भाई? अब यकीन माने फरहान, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें आप सुबह फीड करवा दें, शाम तक शांत रहते हैं। छोटे बच्चे सुबह में फीड करवा दें, शाम तक उनको परवाह ही नहीं है। हम जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। फिर कहूंगा मामला ज़हन का है। और कुछ जिन लोगों ने 40-40 रोजे रखने की प्रैक्टिस की, वो जानते हैं कि पहले 1-2 दिन में आपको बदनी तौर पर थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन तीसरे दिन के बाद आपका जिस्म, आपकी रूह, आपका जहन, इलियास भाई, आदी हो जाता है। वो मांगता ही कुछ नहीं है। और वैसे भी मेडिकल साइंस ये कहती है कि नींद और भूख दो ऐसी चीजें हैं, जितनी चाहें बढ़ा लें और जितनी चाहें कम कर लें। कई बार हमें इस किस्म की मेडिसिन दी जाती है कि हमारी डाइट जो है, हमारी खुराक जो है वो कम हो जाए। और हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं, नहीं भाई साहब, मेरा मैदा ना छोटा हो गया है,
ہن میں کو ادھی روٹی کھاواں نا تو کہندا بس ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. تو پھر روزہ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. اس کو آرڈر کریں کہ یہ ایکسیپٹ کرے چیزوں کو، اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے جن کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کو ایکسیپٹ کرے جن کو میرا رب خداوند ایکسیپٹ کرتا ہے. اور میرے یسوع نے تو بڑی خوبصورت بات کہی، اور جب تم روزہ رکھو، کیسے رکھو؟ اب آ جائیں پریکٹیکل سائیڈ پر. کیسے رکھو؟ پوشیدگی میں. نمائش نہیں کرنی، ڈھول نہیں بجانا، بتانا بھی نہیں ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے. اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو متی کی انجیل کے 6 باب میں کہا پھر تو اپنا اجر پا چکا. لیکن اگر یہ معاملہ پوشیدگی میں رہتا ہے، آپ چپ رہتے ہیں اور چپکے سے اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں، تو پھر کہا اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تو خدا سے دعا اور روزے کا بدلہ لینا، یعنی اس کے افزانے میں اگر ہم کچھ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر شرط کیا ہے؟ پوشیدگی. بھائی گھر والوں سے تو آپ چھپا نہیں سکتے، ہے نا؟ گھر والوں سے تو نہیں چھپا سکتے، لیکن محلے سے تو چھپا سکتے ہیں. اپنے ساتھی ورکرز جو ہیں ان سے تو چھپا سکتے ہیں نا. محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھا. کیا کہا آج کے بیان میں؟ تم روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو. لو امی میں نے روزہ رکھا ہے، شام میں سیویاں نہ کھولنا دے. شاباش تہاڈی بھائی. امی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو نا گاجر کا حلوہ ہونا چاہیے. شاباش بھائی. امی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو نا حلوہ پوڑی ہونی چاہیے. کادہ روزہ رکھے ہے تم بھائی؟ یہ پوڑیاں تو بغیر نہیں کھلتا، یہ گاجر کے حلوے کے بغیر نہیں کھلتا. سادگی کے ساتھ بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ تو سادگی کے ساتھ ہی کھول لیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں آپ جانتے ہیں، تو آپ بھی سادگی کے ساتھ کھول لیں، سادگی کے ساتھ. چلیں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ماہ رمضان ہو یا لینٹ سیزن ہو، آج کل کمرشل ہو چکا ہے. ماہ رمضان ہو یا ہمارا لینٹ ہو، یہ کمرشل ہو چکا ہے. اس سے باہر نکلیں بھائی، اس سے باہر نکلیں، کیونکہ روزہ بڑا پرسنل ہے، دعا بڑی پرسنل ہے، اور یہ پوشیدگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ خدا کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن میں ہیں، آپ کا دعا، آپ کی ریاضت، آپ کا روزہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اس میں کتنے گہرے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ اور گہرے میں چلے جائیں تو پھر میں نے کہا اپنے خداوند کے ساتھ کلوز اور پھر کلوز اور پھر کلوز ہوتے چلے جائیں. اگر آپ میں سے کوئی اس وقت روزے کی حالت میں ہے، جب ہم خداوند کی میز پر آئیں گے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس خوراک کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے، تو آپ اس خوراک کو لے سکتے ہیں. آئیے دعا کریں. ارے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور اقرار کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے ترازو میں جب جب ہم نے اپنے آپ کو تولا ہے بہت کم پایا ہے.